welcome back. In this video, we will be continuing orthodontic synopsis, that is fixed partial denture. This is part 3. In the previous parts, I have discussed the previous things like this, some of the grooves, retentive pins, all this. In this video, I'll be discussing retainers. Okay. Earlier, I had talked about abutment. Now we'll talk about retainers. So, what are retainers? We'll talk in detail, classification, and all these things. So before starting, I want to say the people who are new on my channel, I cover all subjects of dentistry. If you are studying in whatever year, doesn't matter, and want to give any higher exam, want to have a knowledge, you can follow my page and subscribe to my channel. So as well as you can follow the pattern that I have been following. Plus don't forget to hit the like button plus the bell icon so that every time I upload a video you get notified. So talking about retainers, I have talked about the complete diagram in the first video, in which I have talked about what is retainer, what is abutment, what is Pontic. Okay, I'll just give you a rough idea once again, so that we'll just start up with the retainers. For example, we have arch and we have tooth over here and some part is missing. Okay, this tooth is missing, we have tooth here. So in order to cover this space, we sometimes give fixed partial dentures. So in those fixed partial dentures, we just make a prosthesis in which we reduce these two teeth to take up the support, and we just give up a good crown like this and this. Okay, so this part which is replacing the missing tooth is Pontic. The part which is taking support from the adjacent teeth are called as retainers. So these are retainers which are taking support. In between the retainers and the Pontics, we have connectors. Okay, and this yellow tooth from where we are taking support are called as abutments. Okay, we have talked about it earlier also, so I'm just refreshing the concept. Now let's talk about what are retainers, classifications and all. So retainer is a part of FPD which unites abutment to the remainder of the restorations. Okay, simple thing. Now classifications, we have two types of things, extracoronals and intracoronals. Okay, extracoronals and intracoronals, big two classifications, then radicular retainers. Okay, and inside extracoronal we have further ones, so let's get deep into it. Now what are extracoronal retainers? Let me show you the picture. Okay, can you see these pictures, this one and this one? These are intracoronal retainers or intracoronal attachments. The meaning is, if we talk about intracoronal, that is हम दांत के अंदर उस चीज़ को फिट करने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा पोर्शन दांत का कट करके उस चीज़ को उसके अंदर डालेंगे, दैट इज़ इंट्राकॉर्नल. वहीं पर अगर हम बात करेंगे एक्स्ट्राकॉर्नल की, तो एक्स्ट्राकॉर्नल का मतलब है जिसमें हम दांत को कट नहीं करेंगे, मतलब अंदर प्लेस नहीं करेंगे, दांत के ऊपर अटैचमेंट लगाएंगे. ठीक है, दैट इज़ एक्स्ट्राकॉर्नल. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंट्राकॉर्नल एंड एक्स्ट्राकॉर्नल. So extracoronals are the ones that extend around the axial surfaces of the tooth. ओके, इसके पहले आपको सर्फेसेस पता होने चाहिए, एंड मुझे पता है कि ऑलमोस्ट सबको सर्फेसेस का आइडिया होता है. एक्सियल सर्फेस कौन सा, मीजल, पल्पल, डिस्टल, बकल, फेशियल, लिंगुअल, ऑल दी सर्फेसेस. तो जो एक्सियल सर्फेसेस के अराउंड रहते हैं, दोज आर एक्स्ट्राकॉर्नल्स. ना एक्स्ट्राकॉर्नल में वी हैव कंप्लीट विनर क्राउन्स. कंप्लीट विनर क्राउन्स का मतलब कि पूरा दांत को कवर करता है. ऐसा नहीं है कि भी कोई पोर्शन दांत का, जैसे कि कोई मीजल पार्ट कवर कर दिया, डिस्टल पार्ट कवर कर दिया. नो, फुल दांत को कवर करेंगे. उसमें कंप्लीट मेटल क्राउन्स आ सकते हैं. मटेरियल के हिसाब से उसको डिवाइड किया हुआ है कि वो मेटल का हो सकता है, पोर्सलिन हो सकता है. ठीक है, उसके बाद मेटल सिरामिक का हो सकता है, मतलब अंदर की लेयर मेटल की, ऊपर सिरामिक की लेयर. उसके बाद कंप्लीट गोल्डन क्राउन हो सकता है. क्राइलिक फेसिंग हो सकता है कि फेशियल साइड पे क्राइलिक है, बाकी सारा मेटल है. ठीक है, तो मटेरियल्स के हिसाब से हमने उसको डिवाइड कर दिया. तो पहली जो पार्ट थी हमारी एक्स्ट्राकॉर्नल की वो थी कंप्लीट क्राउन. नेक्स्ट पार्ट है उसका पार्शियल क्राउन. पार्शियल विनर्स बोलते हैं हम इनको. पार्शियल विनर्स जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं कि पार्शियल आप कौन से सर्फेसिस पर लगाओगे.
3 क्वार्टर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो फेशियल सरफेस को छोड़ के बाकी तीनों सरफेसेस को कवर कर लेता है, ठीक है। कौन कौन से, मीजल, डिस्टल और आपका जो लिंगुअल हो गया। जैसे कि मान लो ये केनाइन है, ठीक है, तो केनाइन का अब ये क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सेंट्रल इंसाइजर, ओके। सेंट्रल इंसाइजर का ये बाहर वाला सरफेस है, इसको अगर हम थोड़ा सा मीजल और डिस्टल व्यूज़ में देखेंगे तो आपको बेटर पता चलेगा। तो हमने ये वाला सरफेस छोड़ दिया और बाकी ये हमारा बच गया मीजल, इसके साइड में ये हमारा लिंगुअल या पैलेटल बोल सकते हो आप, और उसके पीछे डिस्टल, ये सब कवर कर दिया। तो 3 सरफेसेस को कवर कर दिया, बाहर का सरफेस छोड़े, दैट इज़ 3/4 क्राउन। उसका मतलब होता है 3/4। फिर एक होता है रिवर्स 3 क्वार्टर। इसका मतलब ये होता है कि हम इसमें फेशियल सरफेस को इंक्लूड कर लेते हैं और बाकी किसी एक सरफेस को छोड़ देते हैं। वो कोई भी सरफेस, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, लिंगुअल सरफेसेस टिल्टेड होते हैं, तो लिंगुअल सरफेस को छोड़ देते हैं, बाकी सरफेसेस को कवर्स कर लेते हैं। तो दैट इज़ योर रिवर्स 3 क्वार्टर। देन इज 7/8 बेसिकली मोलर्स का सीन होता है। मोलर्स में कोई ऐसा एक कस्प, मान लो मोलर टिल्टेड है, कोई एक कस्प उसका इंक्लाइंड है या दबा हुआ है, तो उस कस्प को छोड़ के बाकी सारे एरिया को कवर कर देंगे, तो वो 7/8 पोर्शन कवर हो जाता है। फिर 1/2 क्राउन्स होते हैं जिसमें कि हम कोई 2 सरफेसेस कवर कर लेते हैं, बाकी 2 छोड़ देते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्शियल विनर क्राउन्स, ओके। देन वी हैव कंजर्वेटिव क्राउन्स। कंजर्वेटिव क्राउन्स में क्या होता है, इसमें हम कोशिश करते हैं चीज़ों को कंजर्व करने की, ज़्यादा से ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर को रिड्यूस ना करना पड़े। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर हम दांत के ऊपर क्राउन लगाएंगे, चाहे वो फुल क्राउन हो चाहे वो पार्शियल क्राउन हो, हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते उसको इतना रिड्यूस करना, हम कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें हम लैमिनेट्स और रेजिन बॉन्डेड रेस्टोरेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जस्ट वो द फेशियल सर्फेस ऑफ द टूथ फॉर द एस्थेटिक पर्पसेस और फैब्रिकेटेड फ्रॉम रेजिन और डेंटल पॉर्सलिन्स। पहली बात तो एक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, पोर्सलिन वर्ड जो है दैट इज़ सिमिलर टू सिरेमिक, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। पोर्सलिन सिरेमिक ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है। तो कभी लिख देंगे ऑल सिरेमिक, कभी लिख देंगे मेटल सिरेमिक, तो उसका मतलब यही होता है कि मेटल और पोर्सलिन मटेरियल, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्राकॉर्नल मटीरियल, इंट्राकॉर्नल रिटेनर्स की, जो कि हम दांत के अंदर प्लेस करेंगे। अब दांत के अंदर मतलब दांत का सरफेस कट करके बीच में से उसमें प्लेस करेंगे। इट कैन बी इनलेज एंड ऑनलेज। अब इनलेज ऑनलेज आपको अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। मान लो ये एक दांत है, हमने इसका थोड़ा सा सरफेस कट करा, मान लो ये सरफेस ऐसे कट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसके ऊपर अब यहाँ पे एक बेवल दे के और मैंने एक कोपिंग टाइप चीज़ प्लेस कर दी इसके अंदर। ये सारा ग्रीन पार्ट जो है मैंने प्लेस किया है। सो दिस इज़ माई इनले, दिस इज़ माई इनले। टॉकिंग अबाउट ऑनलेस, ऑनलेस थोड़े से डिफर हो जाते हैं। ऑनलेस ऐसे आते हैं एंड कंप्लीट क्राउन तो आपको पता ही है ऐसे आता है। सो दिस इज़ अबाउट इनलेज, ऑनलेज। तो ये जो चीज़ें होती है वो इंट्राकॉर्नल में कवर होती हैं, प्लस पिन लेजेस, ये सब हम इंट्राकॉर्नल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो मतलब क्या होता है इसका इंट्राकॉर्नल का, क्यों हम कॉर्नली अंदर क्यों डालते हैं, बिकॉज टू ऑब्टेन द रिटेंशन रेजिस्टेंस फॉर्म दैट इंटीमेट फिट ऑफ द रेस्टोरेशन विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कॉर्नल पोर्शंस ऑफ द टूथ, ओके। सो दिस इज़ वट यू हैव टू नो। बेसिकली आपको मतलब पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए, वही ज़्यादा पूछते हैं। फिर रेडिकुलर रिटेनर्स का क्या मतलब होता है, द ऑब्टेन रिटेंशन बाय मीन्स ऑफ पोस्ट एक्सटेंडिंग इनटू द रूट कैनाल। इसमें जो हम जैसे इनले ऑनले हमने डाला था, इसमें जो हमारा मेटल जो हम दांत के अंदर डालते हैं वो रूट तक जाता है ताकि अच्छा सपोर्ट गेन कर सके, उसको हम कहते हैं पोस्ट एंड कोर। बहुत लोगों को पोस्ट एंड कोर का एक्चुअल मतलब नहीं पता था। इसमें एक्चुअली जो आपकी मेटल कोपिंग होती है वो रूट की कैनाल तक जाती है। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। द चॉइस ऑफ रिटेनर ऑन इंटीरियर टीथ विद फेवरेबल क्लिनिकल क्राउन्स। अब एंटीरियर टीथ आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा कि एंटीरियर टीथ पे कौन से क्राउन्स यूज़ किए जाते हैं। तो एंटीरियर टीथ अगर हम बात करें तो उसमें मोस्ट प्रेफरेबली पार्शियल 3rd 4th क्राउन यूज़ करते हैं। उसके फेशियल सर्फेस को एस्थेटिकली पर्पस के लिए उसको छोड़ देते हैं, उसके ऊपर नगे लगाते हैं, बाकी तीनों सर्फेसेस पे लगा देते हैं, दैट इज़ मीजल, डिस्टल एंड लिंगुअल या पैलेटल जो भी है। सो
एंटीरियर्स में मोस्ट कॉमनली 3/4 पार्शियल वेनर्स यूज़ करते हैं. पोस्टीरियर अबाटमेंट की अगर हम बात करें विद एक्सेप्टेबल क्राउन रूट रेशो, एवरेज क्राउन लेंथ, नॉर्मल एस्थेटिक्स, द चॉइस ऑफ रिटेनर इज पार्शियल वेनर क्राउन. अब कौन सा वाला पार्शियल वेनर क्राउन है वो डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन पे, इंक्लिनेशन है या नहीं है, नॉर्मल है दांत उस पर. फिर चॉइस ऑफ रिटेनर फॉर एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ, मतलब दांत में फिलिंग हो रखी है, कुछ और हो रखा है, कोई एंडो ट्रीटमेंट हो रखा है, उन केसेस में हम मेटल सेरामिक क्राउन्स प्रेफर करते हैं. उन केसेस में हम विनर्स प्रेफर नहीं करते. वी गो फॉर आइदर फुल क्राउन्स, और उसमें भी नीचे मेटल की कवरिंग होती है, उसके ऊपर सिरामिक या पोर्सलिन का मटेरियल होता है. तो दैट इज़ फॉर एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ. डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एंटीरियर्स के लिए 3/4 यूज़ करना है, पोस्टीरियर्स के लिए भी हम पार्शियल यूज़ करेंगे, और एंडोडोंटिक के लिए हम मेटल सिरेमिक्स यूज़ करेंगे. चॉइस ऑफ रिटेनर फॉर टिल्टेड पोस्टीरियर्स. अब स्पेसिफिक हो रहा है, मान लो पोस्टीरियर्स टिल्ट हो गई इसी डायरेक्शन में, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, 1/2 क्राउन यूज़ करोगे. मतलब हाफ ऑफ द क्राउन के सर्फेस को आप कवर करोगे, हाफ पार्ट को छोड़ दोगे. टिल्टेड मोलर्स के लिए आपको ये चूज़ करना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा. टिल्टेड मोलर्स में बताओ कौन सा चूज़ करेंगे. पार्शियल वेनर्स में 3/4 है, रिवर्स 3/4 है, 7/8 है, हाफ है, तो आप हाफ लिखोगे. फिर चॉइस ऑफ रिटेनर्स फॉर लिंगुअली इंक्लाइंड मैंडिबुलर मोलर्स, और स्पेसिफिक हो गया मैंडिबुलर मोलर्स हैं, और मैंडिबुलर मोलर्स यूजुअली लिंगुअली इंक्लाइंड होता है. उस केस में आप रिवर्स 3/4 क्राउन यूज़ करोगे, जिसमें जो इंक्लाइंड सरफेस है उसको छोड़ दोगे, स्पेयर कर दोगे, बाकी सारे सरफेस को कवर कर दोगे. तो अगर आपसे कोई टिल्टेड मैंडिबुलर मोलर की बात करता है तो आप कहोगे रिवर्स 3/4. फिर चॉइस ऑफ रिटेनर फॉर पोस्टीरियर अबाटमेंट विद शॉर्ट क्लिनिकल क्राउन्स एंड अनफेवरेबल क्राउन रूट रेशोज. ऐसे दांत हों अगर जिसमें कि क्राउन रूट रेशो आइडियल नहीं है, जो हमें चाहिए होती है वो नहीं है, क्लिनिकली क्राउन में प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में हम कंप्लीट वेनर क्राउन देते हैं. हम कोई पार्शियल नहीं देते बिकॉज हमारी रेशो जो हमें चाहिए होती है वो है नहीं. तो हम उस केस में सपोर्ट के कारण, बिकॉज इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हम फुल देते हैं ताकि वो चीज़ ना निकले. Now, choice of returner for severely destructed endodontically treated posterior abutments, complete veneer crowns with Dol-Cor retention. मैंने आपको Dol-Cor डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो जाके पार्ट 2 में. तो अगर एंडोडोंटिकली ट्रीटेड दांत है और पोस्टीरियर अबाटमेंट है पीछे की तरफ से, तो आप फुल चीज़ दोगे उसके ऊपर, आप कोई ऐसे पार्शियल चीज़ नहीं दोगे, प्लस आप डॉल रिटेंशन दोगे. क्राउन चॉइस ऑफ रिटेनर टूथ विद हाई कीरीज, बहुत ज़्यादा कीरीज हैं दांत में, बहुत ज़्यादा कीरीज है, तो कंप्लीट विनर क्राउन दोगे. कंप्लीट विनर क्राउन दोगे, विनर दोगे बट कंप्लीट. तो कंप्लीट विनर तो किस किस में देना है. कंप्लीट विनर अगर आपकी रूट क्राउन रेशो में प्रॉब्लम है, क्लिनिकली क्राउन प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है, एंडोडोंटिकली ट्रीटेड है, पोस्टीरियर अबाटमेंट एंडोडोंटिकली ट्रीटेड है, बहुत ज़्यादा कीरीज हैं, तो उसमें आप फुल क्राउन्स दोगे. सिंपल सी बात है, वहाँ पे हमें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है तो हम फुल चीज़ देते हैं, पार्शियल चीज़ नहीं देते. नाउ लेट्स टॉक अबाउट Pontics. So as I have told you in the diagram in the starting part of this video, that what is Pontic, retainer, connector, abutment. Pontic is a part which replaces the missing tooth. Okay, so it's a suspended member, it's not connected, it's suspended, and that replaces a lost tooth and restores the function of that lost tooth and occupies a space. So requirements of Pontics, what we want from Pontic, हम क्या चाहते हैं एक्चुअली, वो एस्थेटिकली उस एरिया को भर दे, प्लस उस जो दांत मिसिंग था उसका काम करने लग जाए, वो उसका फंक्शन करने लग जाए, एस्थेटिक सही हो, एक्सेप्टेबल हो बायोलॉजिकली, ऐसा नहीं है कि भी पर्सन में इरिटेशन शुरू कर दी, ठीक है, इफेक्टिव हो, ओरल हाइजीन हो, उसको साफ़ करना आसान हो, रेजिडुअल मुकोसा जो है उसके अंदर उसको इरिटेट ना करे, ये सब हम Pontic से चाहते हैं. नाउ व्हेन टूथ इज लॉस्ट, रेजिडुअल रिज is formed from gingival and so this lost. Okay, residual ridge is formed from the gingival and oral mucosa. ठीक है. Pontic is positioned away from the movable mucosa to prevent the tissue proliferations around the Pontics. अब क्या होता है, कई बार नीचे की म्यूकोसा अगर मान लो मूवेबल है, ठीक है, ऑब्वियसली जब ईडेंचुलस एरिया होता है तो वो चीज़ जो होती है वो मूवेबल होती है, तो उसको टच नहीं कराते हम Pontic को म्यूकोसा पे, बिकॉज वो मूवेबल होती है, नहीं तो वो इरिटेट करेगी, फंसेगी बार बार, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं ना. जिंजाइवल सरफेस ऑफ Pontic की बात कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द टिश्यू बीनीथ द Pontic, इट इज़ डिजायर टू हैव अ पैसिव कॉन्टैक्ट विद द रिज विदाउट ब्लैंचिंग एंड टू हैव अ मिनिमल टिश्यू कॉन्टैक्ट. जितना मिनिमल पॉसिबल है कॉन्टैक्ट होना उतना मिनिमल होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंचिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ही पैसिव सा कॉन्टैक्ट होना चाहिए. द जिंजाइवल सरफेस ऑफ द Pontic शुड बी कनकेव,
and concave buccolingually and convex mesodistally. This line is very important. Okay, it should be concave buccolingually. buccolingually अगर आँखों से आप देखते हो, आप buccolingual डायरेक्शन में देखते हो, बिल्कुल सीधा फेस की तरफ अगर देखोगे तो उस वे में कनकेव होना चाहिए, और साइड से अगर देखोगे तो कन्वेक्स होना चाहिए. Highly glazed porcelain is a material of choice to contact with the ridge. It should be highly glazed, and rough gingival surface accumulates plaque. रफ़ जो सरफेस होता है जिंजाइवा के नीचे, उस पर बहुत ज़्यादा प्लाक जमा हो जाता है, तो रफ़ नहीं होना चाहिए ताकि उसमें हाइजीन मेंटेन रहे. प्लस पेशेंट मेंटेनेंस, फ्लॉसिंग वगैरह वो जो है पेशेंट को उसको साफ वगैरह उसको रखना चाहिए. तो ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ना. ऑक्लूजल सरफेस, अगर हम पॉन्टिक का बात करेंगे, सब जिंजाइवल सरफेस था. अब हम ऑक्लूजल अगर ऊपर से देखें तो साइज ऑफ द ऑक्लूजल टेबल कैन बी रिड्यूस टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द फोर्स सेंटर्ड ऑन द अबैटमेंट. अब क्या होता है, अगर हम ऊपर से बात कर रहे हैं क्राउन की, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइज़ जो हमारी ऑक्लूजल टेबल का साइज़ होता है, मतलब ऐसे एक तो होता है नॉर्मल जो दांत का साइज़ होता है, एक हमारा जो हम बनाते हैं आर्टिफिशियल, उसका ऊपर का ऑक्लूजल का एरिया थोड़ा कम रखते हैं ताकि उसके ऊपर ज़्यादा फोर्सेस ना पड़े, बिकॉज उसके नीचे जो एक्चुअल अबैटमेंट्स हैं उन पर फोर्सेस ना पड़े, वो ख़राब ना हो. तो थोड़ा सा ऑक्लूजल टेबल कम रखते हैं. रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ द ऑक्लूजल टेबल डज नॉट हेल्प टू रिड्यूस द ऑक्लूजल लोड. हाइट को कम करने से कुछ नहीं होता, उसका एक्चुअल साइज़ कम करना होता है. ठीक है. Now, a pontic as compared to a missing posterior teeth should have the same dimensions mesodistally but less facial-lingually. जो दांत मिस हो गया, जिसकी जगह पे हम नया दांत लगा रहे हैं, तो जो नया दांत हम लगा रहे हैं उसकी डायमेंशंस जो है वो mesodistally सेम होनी चाहिए, बट facial-lingually जो है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए. समझ रहे हो? facial-lingually कम होनी चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द facial-lingual हाइट ऑफ द मिसिंग टीथ. 2/3 होना चाहिए. मतलब अगर आपका जो पहले का सरफेस था वो 30 था, तो उसका 2/3 होना चाहिए, मतलब 20. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फेशियल लिंगुअल हाइट ऑफ द पॉन्टिक इज डिटरमाइंड बाय अपोजिट सेंट्रिक स्पॉट्स. अब उसकी फेशियल लिंगुअल विड्थ, सॉरी हाइट नहीं, विड्थ की अगर हम बात करें कि कितना फेशियल लिंगुअल, हमने ये बात करी कि फेशियल लिंगुअली ऑलमोस्ट 2/3 होना चाहिए. अब अगर हम उसकी विड्थ की बात कर रहे हैं तो उसी विड्थ को जो हमने बोला है 2/3 है, वो इस बेसिस पे बोला बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी अपोजिंग सेंट्रिक स्टॉप्स. तो अप्रॉक्सीमेटली हम उसको लेके चलते हैं. इन एफपीडी इट इज़ बेटर फॉर द पोस्टीरियर पॉन्टिक टू अवॉइड कॉन्टैक्ट्स इन बैलेंसिंग साइड. आपको 2 साइड्स बताऊंगी. अगर हमारा ये मैंडिबल है और ये लेटरल मूवमेंट कर रहा है, तो जो लेटरल मूवमेंट एक्चुअली हमारा पार्ट कर रहा है दैट इज़ अ वर्किंग पार्ट, और जो लेटरल मूवमेंट नहीं कर रहा, जो इसके असर से मूव करेगा, वो नॉन वर्किंग पार्ट होता है. उसी पार्ट को हम बैलेंसिंग साइड बोलते हैं. ठीक है. सो इन एफपीडी इट इज़ बेटर फॉर पोस्टीरियर पॉन्टिक टू अवॉइड कॉन्टैक्ट्स इन बैलेंसिंग साइड. अब बैलेंसिंग साइड पे जो दांतों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो आपको जो पॉन्टिक लगाया है उस पर असर पड़ेगा. आपको इस हिसाब से डिज़ाइन करना है. सिंस द मैक्सिलरी वोकल कस्प परफेक्ट एस्थेटिक्स एंड प्रिवेंट चीक बाइटिंग, देयर पोजीशन शुड नॉट बी रिड्यूस्ड. लेकिन जो मैक्सिल, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा ऑक्लूजल टेबल को रिड्यूस करना चाहते हैं बिकॉज ताकि फोर्सेस ज़्यादा ना पड़े. ठीक है. प्लस हम ये चाहते हैं कि जब हमारा बैलेंसिंग साइड पे कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अबैटमेंट पे असर पड़ेगा. लेकिन जो मीज़ोबकल कस्प्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं, उनको रिड्यूस नहीं करते, बिकॉज अगर उनको भी रिड्यूस कर दोगे तो एस्थेटिकली आपको दांत का अंदर का एरिया दिखने लगेगा. तो मीज़ोबकल कस्प को प्रॉपर उसी डायमेंशंस में रखते हैं. मैंडिबुलर लिंगुअल कस्प जो होते हैं प्रोटेक्ट द टंग एंड दे शुड नॉट बी रिड्यूस. तो कौन कौन से कस्प हमें रिड्यूस नहीं करने. ठीक है. कौन कौन से कस्प हमें रिड्यूस नहीं करने. मान लो ये हमारी बैलेंसिंग साइड है, और जब हम लेटरली मूव करते हैं तो हमारे दांत इस टाइप के कांटेक्ट में आते हैं. तो हम एक तो मैक्सिला का बक्कल कस्प नहीं रिड्यूस करेंगे, और एक हम मैंडिबल का लिंगुअल कस्प नहीं रिड्यूस करेंगे, बिकॉज इसको रिड्यूस कर दोगे टंग फंसने लग जाएगी. ठीक है ना. टंग को भी बचाना है, प्लस एस्थेटिक्स भी मेंटेन करना है. द फंक्शनल कस्प ऑफ द occlusal surface of the pontic should not be reduced to preserve the stable vertical dimensions. जो फंक्शनल कस्प हैं occlusal surfaces of pontics that should not be reduced. फंक्शनल कस्प कौन से होते हैं हमारे पास. ये हमारे फंक्शनल कस्प होते हैं. that should not be reduced to preserve the stable vertical dimensions. Okay, you need good vertical dimensions, stable ones.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ पॉन्टिक। तो हमने पॉन्टिक के सारे सरफेस पढ़ लिए, हमने जिंजाइवल सरफेस पढ़ लिया, उसकी बात कर ली कि जो हमारा बक्कोलिंगुअली जो है केव होना चाहिए, मीजर डिस्टली कन्वेक्स होना चाहिए, इरिटेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टच नहीं होना चाहिए, पैसिव कांटेक्ट होना चाहिए। फिर हमने बात करी ओक्लूजल सरफेस की कि हमें थोड़ा रिड्यूस रखना चाहिए। फिर हमने बात करी कि कौन से कस्प रिड्यूस नहीं करने चाहिए। फिर हम बात करेंगे इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस की। इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस ओके, फंक्शनल एंगल विड्थ की भी बात करी थी जो 2/3 होनी चाहिए ना। इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस में क्या बात है कि इंटरप्रॉक्सिमल एम्ब्रेजर्स शुड बी लेफ्ट ओपन टू परमिट इजी क्लीनिंग। जो एम्ब्रेजर्स होते हैं हमारे, एम्ब्रेजर्स क्या होते हैं भाई, देखो बताती हूँ। ये दांत एक इसके कांटेक्ट में है, तो ये जो है ये है फेशियल एम्ब्रेजर्स, ये एम्ब्रेजर्स होते हैं, ठीक है। ये ओक्लूजल एम्ब्रेजर्स हैं, नीचे वाले जिंजाइवल एम्ब्रेजर्स हैं। तो ये एज सच होने चाहिए क्योंकि ये हेल्प करते हैं क्लीनिंग में, ठीक है। वाइड एम्ब्रेजर्स आर प्रोवाइडेड फॉर पोस्टीरियर टीथ फॉर बेटर क्लीनिंग। जितना ज़्यादा वाइड होंगे ये उतना ज़्यादा मदद मिलेगी क्लीनिंग में। उसके बाद साइज ऑफ मैक्सिलरी इंटरप्रॉक्सिमल एम्ब्रेजर्स शुड बी रिड्यूस्ड फॉर द सेक ऑफ एस्थेटिक्स। Maxillary interproximal embrasures. Interproximal embrasures should be reduced for sake of aesthetics. There should not be infringement to the interdental papilla. थोड़ा सा मैक्सिला की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं ताकि एस्थेटिक्स पर कॉम्प्रोमाइज़ ना होए। Now let's talk about the buccolingual surfaces of the pontics. ठीक है, ये buccolingual surface हो गया। So फेशियल सर्फेस शुड बी डिज़ाइन विद एस्थेटिक्स। ऑब्वियसली बात है, फेशियल सर्फेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस्थेटिक के लिए। लिंगुअल सर्फेस इज डिज़ाइन विद कंसर्न्स ऑफ हाइजीन्स। अंदर का सर्फेस हाइजीन के हिसाब से, बाहर का सर्फेस एस्थेटिक के हिसाब से बनाओ। लिंगुअल सर्फेस ऑफ पॉन्टिक शुड शार्पली डिसेंट कनकेवली फ्रॉम द हाइट ऑफ कॉन्टूर। Pontic recommended in mandibular anterior areas with extensive ridge resorption is modified ridge lap with no embrasures. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉन्टिक रिकमेंडेड है मैंडिबल एंटीरियर, आगे की तरफ, मैंडिबल के आगे की तरफ दांतों में अगर हम लगाते हैं तो हमें मॉडिफाइड रिज लैप लगाना चाहिए विद एक्सटेंसिव रिज रिजॉर्प्शन। अगर बहुत ज़्यादा बंदे की नीचे की रिज जो है मैंडिबल की रिजॉर्ब हो रखी है, बिल्कुल हाइट कम हो रखी है, तो उस एरिया में अगर आगे की तरफ मैंडिबल में एस्थेटिक्स भी देखना है प्लस उसकी रिज भी रिजॉर्ब हो रखी है, तो आप वहाँ पे अपना कौन सा लगाओगे, मॉडिफाइड रिज लैप लगाओगे। समझ गए हो? तो ये 2-3 चीज़ें रटी होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में डालें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में जो भी डेंटिस्ट्री में उनको शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय।